Hello dear students, welcome back on Tech Chemistry Point. Today's lecture is relative atomic mass. सबसे पहले आप सबको आइडिया होना चाहिए कि what is relative. रिपीटर्स अगर मुझे सुन रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता रिलेटिव्स के बारे में. जब MDCAT का रिजल्ट अनाउंस होता है तो सबसे पहले हम सबकी फुप्पो, आपकी फुप्पो पूछने आ जाती है कि जी क्या बना बिटिया रानी का, और स्पेशली जब उनके बेटे या बेटी का एडमिशन मेरिट पर हो जाए. इस केस में वो रिलेटिव भी पूछने आ जाते हैं जो कभी हमने देखे भी नहीं. आई मीन खिलाई मखलूक. So dear students, this was a part of joke. So come on our topic. Dear students, relative atomic mass is actual term of atomic mass, and atomic mass is divided into three types. First one is relative atomic mass. कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाले जाने वाले मास को relative atomic mass कहते हैं, and we will discuss it in detail. Second one is atomic weight. किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सब आइसोटोप्स के मास का और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से एक एवरेज निकाला जाता है, जिसको आप एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं और इसे एटॉमिक वेट भी कहा जाता है. एंड थर्ड वन इज मास नंबर. इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर. व्हाट इज एक्चुअली न्यूक्लियन नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन inside the nucleus is called nucleon number. Dear students, relative atomic mass को डिस्कस करने से पहले हम relative mass को स्टडी करेंगे. So I have a question. How can you find the mass of 1 kg vegetables? Students, इस बैलेंस को गौर से देखिए. आप डेली बेसिस पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मेजर करने के लिए हम इस बैलेंस का यूज़ करते हैं. एंशिएंट टाइम में मास को मेजर करने के लिए स्टोन्स को यूज़ किया जाता था, बट इन मॉडर्न पीरियड एक मेटालिक बार को स्टैंडर्ड यूनिट लेकर मास को मेजर किया जाता है. सो वी कैन से दैट kg is taken as standard unit to measure the mass. So now the mass of vegetables, fruits, sugar and other things relative compared to 1 kg. Dear students, the second question is, can we find the mass of an atom through this balance? So let it discuss. Suppose इस बैलेंस के थ्रू क्या हम हाइड्रोजन एटम के मास को 1 kg के साथ कंपेयर करके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है no. You can't find the mass of an atom because atom is very small. It means atoms and molecules के mass को इस बैलेंस के थ्रू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. Now we are thinking about that how we can find the mass of an atom. प्रीवियस स्लाइड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के mass को मेजर करने के लिए kg को यूज़ किया गया, बट द mass ऑफ एन एटम can't be measured in this way. एटम के mass को मेजर करने के लिए कार्बन 12 को कंसिडर किया गया बिकॉज कार्बन 12 का mass होल नंबर में था, उनके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल थे. दैट्स वाई वी सेलेक्ट इट. इस बैलेंस के दोनों साइड्स पर कार्बन 12 का एटम है एंड हेयर 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. सो दैट्स वाई 1 unit of carbon atom is taken as standard unit. For example, we measure the oxygen atom with 12 units and it is unbalanced because 1 oxygen atom is equal to 16 units. It means oxygen के relative atomic mass के लिए 16 units consider किए जाएंगे. Now, what is atomic mass unit? Mass of 1 carbon atom is equal to 12 units and here 1 unit is considered as 1 AMU, which is 1 atomic mass unit. Now we can say that 1 AMU is single unit of carbon and 1 AMU is equal to
1/12 parts of carbon. In result, 1 AMU is called standard unit of atomic mass and 1 kg is called standard unit of mass. Now we will discuss the definition of relative atomic mass. The mass of an atom of an element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon taken as 12 is called relative atomic mass. The mass of an atom is very small. It cannot be weighed by any non-physical balance. That's why we use relative atomic mass unit scale. Dear students, एक बात याद रखें, जब किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर किया जाता है, हम उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. So in conclusion, mass of one oxygen atom is equal to 16 AMU and mass of one nitrogen atom is equal to 14 AMU. Dear students, इस टॉपिक के रिलेटेड हम एक MCQs डिस्कस करेंगे. Which one of the following is exact mass number of hydrogen atom? Option A 1.008 AMU, option B 1.008 gram, option C 1.661 into 10 raised power minus 24 gram, option D 1 and option E both A and B. Dear students, आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी होना चाहिए, बट जब आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द एग्जैक्ट मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. प्रीवियस स्लाइड्स में हम पढ़ के आए हैं कि मास नंबर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के एडिशन को कहते हैं, कि किसी भी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की एडिशन होती है उसे हम मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर कहते हैं. तो हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, जस्ट प्रोटॉन होता है. अगर हम प्रोटियम की बात करें, क्योंकि उसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो दैट्स वाई हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है. तो इसका जो न्यूक्लियन नंबर होगा वो 1 होगा. इसलिए अगर न्यूक्लियन नंबर 1 है तो मास नंबर भी 1 ही होगा. सो आंसर विल बी डी. So D is correct option. Okay. Dear students, what about option A 1.008 AMU? अगर सवाल में मास नंबर की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा जाता तो ऑप्शन ए को करेक्ट करते. क्यों? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में होता है. मास नंबर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, हमेशा होल नंबर में होता है. ओके. व्हाट अबाउट ऑप्शन बी 1.008 ग्राम? इट्स मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके. Charlie 1.661 into 10 raised power minus 24 gram. It's equal to 1 AMU. So dear students, that's all about today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.